Namaskar to everybody. I am extremely happy this morning to be with Samvardhan Trust and its associate Ujjwal organization, and more so with all the young people who have gathered here. Almost 40 people have gathered this morning. I am really flattered and I am very happy. I particularly thank my once upon a time teaching colleague Vedvrat for organizing this and for bringing in a lot of young people. तो ये प्रारंभ करते हैं. ये बताइए, ये आज की टॉक हिंदी में करनी है या अंग्रेजी में करनी है या मिक्सचर में करनी है? बताइए. मिक्स ठीक है सर. मिक्स ही ठीक है. ठीक है. हाँ जी सर, आपका स्टाइल वैसे ही बहुत अच्छा है. अच्छा, चलिए. तो हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से. वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ. भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ. याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वम् ईश्वरम्. तो आज एक आप लोगों ने बड़ा अच्छा गंभीर विषय लिया है, और केवल ये अच्छा नहीं है कहने को, ये एक जीवन मरण का प्रश्न है, हमारी संस्कृति के भविष्य का प्रश्न है. How we are going to survive in the future, that is the real question. And that answer we must find for ourselves if we have to survive. So, the topic is the ethical issues for the young in modern India. I am making it a small rider that is for the young, because they are the future and the country will live because of them and through them. And I do not want to talk of the subject in general, but I wish to talk about things specifically as challenges before the young. How do the young feel the challenges? And what are their special challenges? What are the challenges for people like me, who is almost 75, they are very different from what is before people who are 25 or 30. There's a world of difference, and there should be so. So I'm going to address as I see it, and not as I used to see it when I was 25, you see, but as I see it now, with all my so-called experience and understanding of the history of India that I have seen through my eyes in the last, what shall I say, 70 years, because I have a good memory since the age of 5, from the time when the hydrogen bomb was exploded by America and then by Russia, and I could read the newspaper. So I do recall very clearly what has happened in India and what has happened abroad. There was Chacha Nehru in India, and there were many people outside India whom for Indians, us, the young people, were either Russians or American, because this was the era of the Cold War. Now, all that is in some way part of history. But there are just too many things which have not disappeared or which have not still declined. And those things continue to pose a very serious problem
for us even today. And right now they are posing very serious problems on the borders of Delhi through the Kisan Andolan. So if you see the whole situation in a broader historical sense, then you see the challenges that our country faces. And our country faces the challenges even more severely today in the global context. So what are the ethical issues for the young people today? The first thing, and the very clear thing, is that the young have to live within India, most of them, although we are educated in such a manner, our parents tell even a small child of 10 that she or he will migrate to US or live in Europe, you know. Our education system is somehow geared to that, as if the person would find a great job somewhere outside India. And that again creates so many problems in the life of the young people. Now, keeping aside contemporary controversies, I want to talk about the broad sweep of history as it has happened in, as I say, 70 years, because they pose a very serious problem for the young. It is not just a problem of finding job. You know, you can always see a political party howling, and it hardly matters which political party is that, because they say the same thing, that the youngs don't have job and there are so many unemployed people. And there are unemployed people in villages and cities and everywhere. I'm not just looking at that. I'm looking at the fact that why is it that the young people feel so uncertain and insecure, not just economically, not just in terms of job, naukri ya vyapar, but they feel insecure in terms of identity. And why do they do so? And what is exactly the problem? And where has the problem come into existence and how it has come into existence in such an acute way? Now, as I see it, that the problem can be seen in two ways, or rather in two areas. Number one, how the elderly, हम लोग, मतलब मेरे जैसे लोग, 65, 70, 75, 80 की उम्र के लोग, people, elderly people, how do the elderly people view the young and what do they want from the young? That is, and what do they present to the young? That is one part of the problem. सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर. हाँ. कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं संगीत बोल रहा हूँ. हाँ. कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हिंदी में करें तो अधिक, क्योंकि अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी कर देता हूँ, अधिक हिंदी में कर. नहीं, बिल्कुल सही है, जो सुनने वालों को जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए. तो समस्या देखिए क्या है कि मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे जो वयोवृद्ध हैं वो किस प्रकार देखते हैं हमारे नवयुवतियों और नवयुवकों को, जो 70-75 की आयु के हैं, जो शासन में हैं, जो पावर में हैं, जो अधिकांश संसद में हैं, जो जुडिशरी में हैं और विश्वविद्यालयों में हैं या जगह जगह तरह तरह के प्रोफेशंस में हैं. वो क्या चाहते हैं कि हमारा यूथ, हमारे नवयुवक युवतियां क्या करें, उनसे क्या उनकी अपेक्षाएं हैं. एक तो बात ये, और दूसरे है कि क्या
जो वास्तव में नौजवान हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं अपने जीवन से। सच पूछा जाए तो बुजुर्गों से अपेक्षाएं तो इतनी होती नहीं हैं इस उम्र में, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो होंगी तो शायद बहुत कुछ निराशा ही हाथ लगेगी, और समस्या भी यही है। तो वो क्या चाहते हैं और वो किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं बुजुर्गों से, अपने पिता से, अपनी माता से, या उस आयु के लोगों से। हाउ इज इट दैट दे लुक अपॉन द होल थिंग। अब यहां आप देखेंगे कि एक निरंतर अंतर विरोध रहता है। इस अंतर विरोध के बारे में बात बहुत कम होती है। हर नेता कहता है कि जो नौजवान हैं वो देश का भविष्य है, कल को देश को उन्हें ही संभालना है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि वो कल कभी आता नहीं। और आप देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत कम नवयुवा हैं। अगर दूसरे देशों से तुलना की जाए तो बहुत कम है। और मैं ये कहूँगा कि मैं फिगर्स नहीं दे सकता आपको, लेकिन ये सामान्यता आप देखेंगे कि ऐसा है। अमेरिका का ही प्रेसिडेंट इतना बुजुर्ग शायद पहली बार बना है, वरना वहाँ के प्रेसिडेंट भी आयु में प्रायः बहुत कम रहते हैं। तो ये एक जनरल बात है कि सत्ता जहाँ है वहाँ यूथ नहीं है। और आज जो संघर्ष है वो इन दो गुटों के बीच में है। प्रायः हम देखते हैं राजनीतिक तौर पे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, कौन सी अपोजिशन में है, और उनके बीच में क्या संघर्ष है और क्या इश्यूज हैं। लेकिन हम अब इसको इस परिस्थिति में नहीं देखते कि ये पीढ़ी का, दो पीढ़ियों का क्या संघर्ष है और इसके द्वारा जो नैतिक मूल्य हैं वो कैसे देखे जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो विषय नैतिक मूल्यों का है, तो उसके बारे में कोई कारगर बात नहीं होगी जब तक हम ये न मान लें कि नैतिक मूल्यों को ही देखने की तरीके दो प्रकार के हैं, और शायद वो इतने अलग अलग नहीं है। उसके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसके बीच में किसी प्रकार की क्लैरिटी है भी नहीं। तो ये सब कैसे हुआ, पहले तो जरा इसको देखें। देखिए, भारत के आजाद होते ही दो तीन घटनाएं होती हैं। लोगों के अलग अलग नजरिए हैं उनको देखने के बारे में। पहली घटना तो होती है कि देश का विभाजन होता है, और उस विभाजन की छाया में ही हमारा नया संविधान बनता है, और यहाँ कुछ नए मूल्य बन जाते हैं और कुछ नई नैतिकताएं बन जाती हैं। तो इसी के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि गांधी जी के शिष्य थे, वो एक ऐसा निजाम देते हैं जिसमें दो चीजें प्रमुख हैं। एक है सोशलिज्म यानी समाजवाद, और दूसरा है सेक्युलरिज्म, जिसका अनुवाद तो स्वयं में ही एक बड़ी मुसीबत है। कोई धर्मनिरपेक्षता कहता है, कोई धर्म संभाव कहता है, वगैरह वगैरह। और आज तक इसके बारे में निर्णय नहीं हो पाया, तो हम सेक्युलरिज्म ही शब्द का प्रयोग करते हैं बजाय हिंदी शब्द उसके लिए ढूंढने के, क्योंकि लोगों को स्वयं नहीं पता कि किसी भारतीय भाषा में सेक्युलरिज्म का कैसे अनुवाद किया जाए। और मुसीबत क्यों है इसके बारे में मैं बताऊंगा। गांधी जी के जो एक पोते थे, उनसे मेरा इस पर बहुत डिस्कशन होता था, और मैं यही कहता था कि इसका ट्रांसलेशन हो नहीं सकता, क्योंकि सेक्युलरिज्म को हमारी भारतीय दृष्टि है नहीं। तो ये दो चीज़ें आती हैं, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाते हैं। मेरे बचपन के प्यारे चाचा नेहरू, जिनके विषय में बोलना, क्रिटिसाइज करना, परीक्षण करना, ये सब प्रतिबंधित था। जब तक कि मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा, तब तक भी लगभग प्रतिबंधित था।
और थोड़ा थोड़ा लोगों ने बोलना शुरू किया जब मैं अपना आधा समय गुजार चुका था, और अब कहीं जाकर थोड़ा एक निष्पक्ष रूप से विवेचन हो रहा है कि ये सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म क्या था। तो देखिए, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म चला, और कहने के लिए तो वो एक बड़ा खूबसूरत आइडिया महात्मा गांधी का भी चला, और महात्मा गांधी हमारे हर करेंसी के नोट पर तो विद्यमान हैं। अभी तक मोदी जी ने उनको रिटायर नहीं किया है वहाँ से। तो महात्मा गांधी करेंसी के नोट पर ही विद्यमान है। उनका जो राम राज्य था वो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों के द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। वहाँ नैतिक मूल्य समाप्त हो गए। तो ये जो एक सबसे बड़ी घटना हुई, इसी घटना में जो दो पीढ़ियां हैं वो आज बटी हुई हैं। तो हमारा जो निज़ाम है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो पूरी व्यवस्था है न्याय की, वो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के हिसाब से बनी है। और हमारा जो संविधान है वो भी इसी प्रकार से बना है कि एक मेजॉरिटी इस देश में है, हिंदू, सिख, जैन इत्यादि मिलाकर, और उसके विपरीत एक बहुत बड़ी मुस्लिम माइनॉरिटी है, और उसके साथ कुछ छोटी छोटी और माइनॉरिटीज़ हैं। और हमारे हर प्रकार के नैतिक आचरण की, हमारे हर प्रकार के, केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हमारे हर प्रकार के कानून में जो भी व्याख्या होती है वो इन्हीं मुद्दों को या इन्हीं सिद्धांतों के इर्द गिर्द होती है। तो यही जैसे हमारा नैतिक मूल्य बन गए हैं। लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि ये नैतिक मूल्य तो हमारे 1950 में बने। इस भारतवर्ष का तो अस्तित्व 5000 साल पहले से रहा है, और इसके ग्रंथ हैं, और इसके मूल्य हैं, और इसके सिद्धांत हैं जिनके द्वारा ये जीता रहा है। उन सिद्धांतों को 1950 में हम बहुत पीछे कर देते हैं, या स्पष्ट रूप में हम उनकी चर्चा छोड़ देते हैं, उनकी शिक्षा हम नहीं देते। तो जो हमारा नया वर्ग पैदा होता है, यानी प्राय आप लोग जो सन 70, सन 75, 80 में पैदा हुए और जो आज इतने बड़े हैं और सक्षम हैं, उनका सोच विचार का ढंग शिक्षा नीति के कारण उनके लिए नैतिक मूल्य बिल्कुल अलग हो गए। देखिए, केवल ये कह देना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, ये धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, या भारत विश्व गुरु हमेशा से रहा है, या हमारे मूल्य सर्वोपरि हैं, हमने सबको शरण दी है, ये सब चीजें जो हम सुनते हैं, कहते हैं, ये वास्तव में एक नारे के रूप में हमारे सामने हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इनको न तो हमारे जीवन के व्यवहार से जोड़ा गया है और न हमारे कानून से जोड़ा गया है। ये वास्तव में हमारे कानून से भी नहीं जुड़े हैं। और जो आज की जेनरेशन है, जो हमारे नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो वास्तव में इसी भ्रम में पड़े हैं कि अगर संस्कृति की बात करें, अगर प्राचीन संस्कृति की, मध्ययुगीन संस्कृति की बात करें, तो वो कुछ और है और आधुनिकता और है। तो हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? अरे ये ज्वलंत प्रश्न है, और ये ज्वलंत प्रश्न केवल कोई यूनिवर्सिटी में पर्चा देने के जवाब में नहीं आते हैं आपके सामने। ये आपके सामने जीवन जीने में आ जाते हैं।
बड़ी सीधी सी बात है। मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और 4-5 वर्ष के बाद उनका संपर्क 4-5 वर्ष रहता है, तो वो कहते हैं कि हम आपस में विवाह कर लें। तो आज भारत में एक वर्ग है वो ये कहेगा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, और एक वर्ग है जो कि ये कहेगा कि नहीं, आप एक जाति के तो हैं नहीं, लड़का जो है वो बनिया है और लड़की कायस्थ है या कुछ और इस तरह का है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न भी हमारे सामने रहते हैं। भारत में कुछ ऐसे आचार्य हैं, बड़े अच्छे विद्वान आचार्य भी हैं, जो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। और केवल भारत के अंदर हिंदुओं के बीच में ही ये समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं तो 2 धर्मों के बीच में है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, आप मेरे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं इस पे, जैसे लव जिहाद का जो एक विषय चला हुआ है। तो ये नैतिक मूल्यों का विषय नहीं है, तो ये किसका विषय है? ये एक बड़ा प्राथमिक विषय है कि एक धर्म ये कहता है कि जब तक मेरे धर्म में कोई नहीं होगा तब तक मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, एक गैर मोमिन से मोमिन शादी नहीं कर सकता। अब क्या ये एक नैतिक मूल्यों का विषय नहीं है जो एक हमारे नवयुवतियों के और युवकों के सामने हो, कि क्या ऐसे मूल्य समाज में आज स्वीकृत हो सकते हैं? आप सिर्फ ये कह दें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो बात नहीं पूरी होती। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में बहुत गडमड है और डिवाइडेड है। ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। एक ओर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा कि धर्म की आज़ादी है सबको, और दूसरी ओर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहेगा कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते या जोर नहीं डाल सकते। तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये नैतिक मूल्यों का द्वंद कैसे समाप्त होगा और किस आधार पर समाप्त होगा, ये मैंने केवल आपको एक उदाहरण दिया। ये तो है कुछ धर्म से या व्यक्तिगत जीवन से या पर्सनल लॉ से संबंधित उदाहरण। लेकिन भारत के अंदर, भारत के भीतर जो आज बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, वो दूसरे प्रकार के प्रश्न भी हैं। और वो दूसरे प्रकार के प्रश्न जब राष्ट्रीयता को लेकर उठते हैं, तो हमारे जो नव युवती और युवक हैं वो सोचते हैं कि क्या राष्ट्रीयता की व्याख्या केवल राजनीतिक ही है जैसी कि हमें प्रायः दी जा रही है? क्या वो व्यावहारिक हो सकती है या नहीं? तो हमारी राष्ट्रीयता पाकिस्तान के विरोध में तो हमारे लिए, सबके लिए बड़ी स्पष्ट है, और शायद कश्मीर के बारे में भी बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी राष्ट्रीयता भारत के एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच में क्या संबंध हो, इसके लिए बिल्कुल अस्पष्ट है। एक बिहारी के तमिलनाडु में क्या अधिकार हैं और तमिलनाडु वाले के बिहार में क्या अधिकार हैं, या बिहारी के पंजाब में क्या अधिकार हैं, या महाराष्ट्र में क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ भी कहता हो, हमारा व्यवहार कुछ और कहता है। तो देखिए, नैतिकता तो फिर वहां आती है जहां आप नैतिक मूल्यों के आचरण के बारे में स्पष्ट रूप से व्यवहार कर सकते हो। अब देखिए, जो मैं समझाना चाहता हूं, जो मैं आज बातें कह रहा हूं, उनको आप जरा सोचें। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा ही कुटुंब है। लेकिन इस समय तो भारत को एक कुटुंब की तरह से देखने में बड़ी कठिनाई हो रही है। जितने भी प्रांत हैं भारत के, वो अपने आप को लगभग ऐसा मान चुके हैं कि उनके ऐसे अधिकार हैं
कि जो राष्ट्रीय अधिकार से ऊपर है। इसकी तफसीलों में मैं नहीं जाना चाहता, उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है कि अमुक प्रांत में CAA लागू नहीं होगा, या अमुक प्रांत में जो भारतीय संसद ने कानून पास किया है और एक्ट पास किया है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लागू नहीं होने देंगे। तो अब क्या ये नैतिक प्रश्न नहीं है? क्या ये केवल राजनीतिक प्रश्न है? एक और तो हम कहें कि हम भारतीय हैं और भारतीय से भी ऊपर हम उठ जाएं और कहें कि सारी वसुधा एक कुटुंब है, और फिर हम ये भी कह दें कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देकर सारे विश्व को विश्व गुरु के समान हो गया है। लेकिन हमारे 10 या 15 चीफ मिनिस्टर निरंतर इस बात के लिए तैयार हैं कि सेंटर का कानून तो मैं लागू नहीं होने दूंगा। तो ये है नैतिक प्रश्न। अब इन नैतिक प्रश्नों का समाधान कैसे होगा, इनका हल कैसे निकलेगा? क्या आप सिर्फ कानून बनाने से, संसद में बहस करने से, टेलीविजन पर तू तू मैं करने से इसका कोई निदान कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल भी ऐसा हो पाएगा। तो फिर कौन सा रास्ता है? रास्ता इसका मात्र एक है, और इस रास्ते को खोजने में हमें ये देखना होगा कि ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र पिछले 4-5 हजार साल से क्या करता आ रहा है और किन मूल्यों को लेकर जीता रहा है, और कौन कौन से मूल्य हैं जिनके आधार पर ये राष्ट्र बन पाया है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि ये कहते हैं कि भारत एक देश या राष्ट्र या नेशन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उससे पहले वो होता नहीं था। इस प्रकार की धारणा बहुत से मार्क्सवादियों की हमारे देश में है, और मार्क्सवादी आज भी किसी प्रकार के नेशनलिज्म को नहीं मानते, चूंकि वो इंटरनेशनलिज्म को मानते हैं। और इसी प्रकार से जो निज़ाम मुस्तफ़ा यानी जो एक इस्लामिक उम्मत को मानते हैं, वो राष्ट्र को नहीं मानते। तो मैं इन दो की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि इस देश में रहने वाले अधिकांश क्या लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। भारत हमेशा से, इतिहास के पहले पन्ने से भारत एक राष्ट्र रहा है, और इसके मूल्य रहे हैं, इसकी जीवन पद्धतियां रही हैं। तो अब बात ये आती है कि वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी धारणाएं हैं जिन्होंने इस संस्कृति को मात्र एक नहीं रखा है। क्योंकि देखिए, एक रहना या न लड़ना ये एक नेगेटिव बात होती है, ये एक शासक, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर का सिर दर्द होता है। केवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उन मूल्यों की जो केवल हमें संरक्षित या प्रोटेक्टेड नहीं रखते हैं, बल्कि जो हमको संवर्धित भी करते हैं, पल्लवित भी करते हैं, संस्कृति का विकास भी करते हैं, और जैसा हुआ है। तो यहाँ मैं आपसे कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। मैं षट दर्शन और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय इत्यादि जो हुए उनकी बात नहीं करूँगा। मैं नैतिक मूल्यों की बात करूँगा, और नैतिक मूल्य भारतवर्ष में 5 रहे हैं। 5 प्रकार के ऋण भारत में रहे हैं। सबसे पहला तो रहा है देव ऋण, यानी ये माना जाता है कि संसार को बनाने वाला कोई है। अगर आप नास्तिक भी हैं और आप ईश्वर को नहीं मानते, तो भी आप ये मानेंगे कि ये संसार, ये सृष्टि हमसे बहुत बड़ी है, मच लार्जर, मच बिगर, मैक्रोकॉस्मिक है। मनुष्य और जातियों और
ये हमें किसी न किसी प्रकार से संयमित करती है, चलाती है, या हम चलते हैं। गॉड ना हो फिर भी आप उसे नेचर भी अगर कह दें तो ये चलाती है। तो ये बड़ी है, हमसे कोई बहुत बड़ा है। वो ईश्वर ना हो, वो देवता ना हो, वो डिवाइन ना हो, लेकिन प्रकृति के रूप में भी वो हमसे बहुत बड़ा है या हमसे बहुत बड़ी है। तो जैसे भी आप उसको देखते हैं, पुल्लिंग देखें, स्त्रीलिंग देखें, नपुंसक लिंग देखें, तो पहली बात तो ये है कि वो देव है और उसके प्रति हमारा ऋण है। उसके प्रति ऋण का मतलब ये है कि हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें, अपनी देह, अपना परिवार, अपना समाज, इन सब से अलग उस विराट रूप को भी देखें, उस बड़े दायरे के भीतर अपने आप को माने। इस पिंड को, जो व्यक्ति है, जो एक शरीर है, उसको उस ब्रह्मांड का हिस्सा माने और उसके साथ संबंध बनाए। इसके संबंध बनाने के बहुत सारे तरीके रहे हैं, जिनको हम धर्म कहते हैं, रिलीजन्स कहते हैं, या दर्शन कहते हैं, या फिलॉसफी कहते हैं। तो हम उनमें से कोई भी चुने, या हम उनमें से किसी की साधना करें, या हम कहीं उसमें से किसी को, एक को, दो को बिलोंग करें, तो ये एक चीज है, ये देव ऋण कहलाता है। और इसके लिए किसी न किसी प्रकार की उपासना आवश्यक होती है। अब बहुत से लोग हैं मुझसे ये कहते हैं, साहब मैं तो मंदिर नहीं जाता। भाई क्यों नहीं जाते? अरे भगवान तो सब जगह है, भगवान तो मेरे मन में भी। अब फिर प्रश्न उठता है कि वो जो सब जगह है, जो आपके मन में है, उसको याद करने का कौन सा साधन अपनाते हैं आप? केवल लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लंच के अंदर चाय के ऊपर उस पर बहस कर लेते हैं, या कभी आपने उसको खोजने का, देखने का, जिज्ञासा का, कोई साधना का मार्ग भी चुना है? तो भारत की संस्कृति में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कुछ जानना है तो उसके लिए कुछ साधना करनी है, प्रयास करना है। आप मंदिर जाइए, तीर्थ जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, वगैरह वगैरह, कुछ भी करिए, लेकिन करिए। तो ये करना जो है ये आवश्यक है। उसके बिना आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, उसके बिना आपको कोई आभास नहीं होगा कि वो आपसे बड़ा, बृहत्तर कौन है, क्या है, कैसा है। और दूसरी चीज होती है पितृऋण, यानी पितृऋण या मातृऋण, कि किसी ने हमको जन्म दिया है, कोई परिवार में हम हैं, किसी एक स्थान पर हम हैं, और किसी ने हमको पैदा किया है, तो उनके प्रति हमारा एक ऋण है, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है, ये मूल्य की बात है। आज अमेरिका में बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि आज से 10 साल बाद अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, यानी स्टेट जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और भारतवर्ष में राजनेता बड़ा विचार कर रहे हैं, बेचारे बार बार अपना सिर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, यानी स्टेट जो है वो कैसे कुछ इंतजाम करे, व्यापारियों के लिए कर दे, बुढ़े लोगों के लिए कर दे, रिक्शा वालों के लिए कर दे। क्योंकि हम वेस्ट के मॉडल को ले रहे हैं, और वेस्ट में जो सबसे समृद्ध देश है सिक्योरिटी वाला, जहां सोशल सिक्योरिटी का नंबर होता है, जैसे ही आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जब तक आप रिटायर होते हैं उसमें आपका हिसाब किताब होता है, वो देश कह रहा है कि भाई अब हमारे पास पैसा खत्म होने वाला है, हम सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, मेडिकल एड नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमारे भारतीय कहाँ जाएंगे? जो विदेश का अनुगमन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपने अब ये शिक्षा तो दी नहीं है। सेक्युलरिज्म के अंडर, मार्क्सवाद के अंदर स्कूल में या विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा तो दी नहीं है आपने कि आपको अपने माता पिता की जिम्मेदारी
हर हालत में आपको अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेनी है। ये मानव धर्म है, ये आपका पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शिक्षा तो प्राचीन शिक्षा होने के कारण चाचा नेहरू ने जिन चीज़ों को आउटडेटेड कहा, जिन चीज़ों को धार्मिक कह दिया, जिन चीज़ों को प्राचीन काल का कह दिया, आधुनिक नहीं थी, ये तो शिक्षा वो उस समय की थी, ये आज शिक्षा है नहीं। तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ पितृ ऋण की, तो आप देखिए ये एक जीवंत समस्या है। ये केवल मनुस्मृति या किसी शास्त्र में लिखी हुई बात नहीं है, ये हमारी आपकी जिंदगी में आज भी विद्यमान है। तीसरा ऋण है गुरु ऋण। आपने किसी से शिक्षा ली है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पितृ ऋण के बारे में बहुत महत्व की कहना चाहता हूं, लोग उसे जानते नहीं हैं, इसलिए कहना चाहता हूं। पितृ ऋण का मतलब केवल माता पिता की सेवा करना या उनकी बातों को मानना या उनका ध्यान रखना नहीं है। पितृ ऋण का मतलब होता है कि आपको संतान की उत्पत्ति करके उसे लायक बनाना है, नालायक नहीं बनाना है। नालायक बनने से रोकना है, उसको लायक बनाना है। और लायक का मतलब होता है कि वो सारे ऋण जिनकी बात अब हो रही है वो समाज में पूरे कर सके। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, ये पितृ ऋण का हिस्सा है। संतान की उत्पत्ति, संतान को पढ़ाना, संतान के प्रति वात्सल्य। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज भारत में अगर किसी चीज़ की सबसे अधिक कमी है तो वो वात्सल्य की है। क्योंकि ना तो हमारे राजनेता, ना हमारे कोर्ट्स, ना हमारे प्रोफेसर, ना हमारे पूंजीपति, ना हमारे शासक ये सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो केवल अपने बारे में, अपने स्थान के बारे में, अपनी सुविधा के बारे में ही फंसे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं। आने वाले तो वात्सल्य की कमी है। तो इसलिए पितृ ऋण क्या होता है, ये आज जीवंत रूप में है। आज जो कठिनाई एक 24 साल की लड़की को होती है, अगर वो अपना प्रांत छोड़कर दूसरे भारत के प्रांत में जाकर नौकरी करना चाहे, शादी विवाह करना चाहे, तो उसके बारे में आप जानते हैं। ये बड़ी बात तो शादी विवाह की, सेटल होने की, मकान लेने की तो बड़ी बात है। छोटी छोटी सी बातें कि अगर कार है आपके पास तो वो कार ही आपको 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन बदलवाना है और फिर दुनिया भर के लिखा पढ़ी करनी है। इतनी छोटी छोटी सी चीजें नहीं होती। तो कहाँ का वात्सल्य है, कहाँ का पितृ ऋण है, कहाँ के मूल्य हैं, कहाँ की आधुनिकता है। कंप्यूटर के युग में भी ये समस्याएं हैं हमारे लिए, तो कहाँ की आधुनिकता हुई। चाचा नेहरू कौन सी आधुनिकता देके गए हमें। अब मैं गुरु ऋण पर आता हूं। गुरु ऋण है कि आपको जो विद्या आपने हासिल की है तो आपको गुरु वर्ग के प्रति श्रद्धावान होना है। और ये भी जीवंत समस्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में तो चलिए फिर भी गाड़ी खिसक रही है, विश्वविद्यालयों में तो अध्ययन अध्यापन लगभग समाप्त है। वो इसलिए समाप्त है कि विश्वविद्यालय तो नए नेताओं का की पाठशाला बन गए कि यहां से पार्लियामेंट जाने का रास्ता है भाई। अगर आप अपने आप को यहां ट्रेन कर लें तो फिर आप पार्लियामेंट पहुंचेंगे, और पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए जो रिहर्सल करनी है आपको, आंदोलन की रिहर्सल, वो तो यूनिवर्सिटी कैंपस से ही शुरू होती है। ये मूल्य की बात है। इसको आज आप अधिकार कह रहे हैं। आज आप इसको कह रहे हैं कि मेरा तो अधिकार है साहब कि मैं बोलूं। आपका अधिकार बोलने का तो जब होगा जब पहले आप 4-5 वर्ष शिक्षा ले लेंगे, जब आपको समझ होगी कि मुझे किसके फेवर में बोलना है, किसके अगेंस्ट में बोलना है। तो कॉलेज में पैर रखते ही जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि मुझे किसे वोट देना है
और मेरा अधिकार है, तो क्षमा कीजिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई जानकारी के ऊपर आधारित बात है। ये केवल भावनात्मक बात है, ये मूल्यों की बात नहीं है। ये आप मूल्यों को तो जब जानेंगे जब उनके बारे में 2, 4, 5 साल जहां आप विश्वविद्यालय में आए हैं चर्चा करेंगे, आपस में करेंगे, गुरुओं से करेंगे, सीखेंगे। तो आज का देखिए, आज का जो माहौल है वो कुछ ऐसी धारणाओं के बीच में फंस गया है जो न पश्चिम की वैल्यूज को फॉलो करती हैं और न पूर्व की वैल्यू को फॉलो करती हैं। क्योंकि ये बीमारी पश्चिम के भी विश्वविद्यालयों में है और पूर्व के भी विश्वविद्यालयों में है, लेकिन ये न तो पश्चिम की परंपरा के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न सिस्टम है कि यूनिवर्सिटी जो है वो केवल एजिटेशन का, विद्रोह का ही एक अड्डा हो जाएगा। ये कहीं की भी परंपरा नहीं है, ये केवल एनर्किस्ट वैल्यूज हैं जो कि आज वैल्यूज मान ली गई हैं। और गुरु ऋण में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शिष्य पैदा करें। अब देखिए, आज की जितनी भी शिक्षा है उसका आधार है धन देकर दाखला लो, डिग्री हासिल करके धन कमाओ। तो ये तो भारतीय मूल्य है नहीं। भारतीय मूल्य तो ये है कि आपको पढ़ने दिया जाएगा, पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा, आपको अवसर दिया जाएगा बिना फीस के या बहुत कम फीस के। लेकिन जब आप पढ़ चुकेंगे तब आप सारी उम्र जिस गुरु के आप पढ़े हैं, जिस विद्यालय से आप पढ़े हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आज समय नहीं है वो सब समझाने का कि वो सिस्टम क्या था, लेकिन अपने गुरुकुल के गुरु के प्रति सारी उम्र एक जिम्मेदारी निभाना, और ऐसे जुबान से नहीं, उसको धन से, उसको सपोर्ट से, तरह तरह से जिम्मेदारी निभाना, ये भारतीय पद्धति थी। तो ये वास्तव में गुरु ऋण था, और गुरु ऋण का ही हिस्सा है कि अच्छे शिष्य पैदा करना। तो अच्छे शिष्य पैदा करने का तो अब कोई नैतिक मूल्य विश्वविद्यालयों में मैं देखता नहीं, अब कोई संभावनाएं नहीं देखता, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में संपर्क नहीं होते। शिष्य जो है वो तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद कहाँ गया, कैसे गया, ये हमें नहीं पता, और अधिक पढ़ना नहीं चाहता। लोग पीएचडी भी कहते हैं हमें 3 साल में ही लिख के और नौकरी के लिए चला जाऊं। तो देखिए, ये मूल्य हैं असलियत में, जहां से आपको विकृति से हटकर एक सांस्कृतिक स्वीकृति में आना होगा और सांस्कृतिक सृजन में आना होगा। चौथा जो मूल्य है उसको कहा जाता है भूत ऋण। भूत का मतलब भूत प्रेत वाला नहीं। ये जो सारी कायनात है, ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये भूत है, इसके प्रति भी हमारा कुछ ऋण है, जिसको आज हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं या इकोसिस्टम कह रहे हैं। इसके प्रति भी हमारा ऋण है। इसका ऋण क्या है, इसके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज हम कोरोना काल में जानते हैं कि कोरोना आया ही इसलिए है कि हमने अपना ऋण पूरा किया नहीं, और ये उसी की विकृति का हिस्सा है। और 5वां ऋण था मानव ऋण, कि मनुष्य के प्रति हमारा ऋण है। केवल इस आधार पर नहीं कि ये व्यक्ति हमारे संप्रदाय का, हमारी जाति का है, बल्कि इस आधार पर कि ये मनुष्य है। तो मानव ऋण का अर्थ होता है कि जो भी मानव है उसको हमें कुछ ना कुछ देना है, उससे लेने से पहले उसे देना है। देखिए, दान भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा मूल्य रहा है। स्वभावतः लोभी होता है, ग्रीडी होता है। मनुष्य ग्रीडी ही होते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो केवल उतना ही संग्रह करते हैं जितना 1 दिन 2 दिन खाएं, जितना उनको आवश्यकता हो। लेकिन मनुष्य तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संग्रह करने में ही मर जाता है।
और संस्कृतियों के जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी युद्ध हैं, वो केवल संग्रह को लेकर ही होते हैं। तो उसका निदान उन्होंने दान बताया। दान का मतलब है कि प्रैक्टिकली कुछ देना। अब इन मूल्यों को हम समझ नहीं रहे। एक आज की राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उनको कन्यादान से बड़ी तकलीफ हो गई थी, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मेरे बेटे की शादी में कन्यादान नहीं करवाया जाएगा। तो साहब उनके पुत्र की शादी में कन्यादान नहीं हुआ, और फिर उसका एक सुधारवाद के रूप में बहुत प्रचार किया गया। तो वो सब देखकर मैंने पूरा लेख लिखा, और आप भी पढ़ सकते हैं उसको, वो इंटरनेट पे सुलभ है, इंडिया फैक्ट्स में, कि दान और कन्या का दान ये नहीं है कि मैंने अपनी पुरानी शर्ट दे दी, मैंने अपने पुराने जूते दे दिए, मैंने अपने दिल का टुकड़ा दिया, मैंने अपनी बहुमूल्य वस्तु आपको इसलिए दी कि मेरा और आपका एक गहरा संबंध हो। तो दान से मनुष्य का संबंध बनता है। दान से जो संबंध बनता है वो संबंध एक्सप्लॉयटेशन का नहीं होता, वो किसी के ऊपर डिमांड का, अत्याचार का, जोर और जबरदस्ती का नहीं होता। मैं दान की बात कर रहा हूं, मैं ऋण की बात नहीं कर रहा, लोन की बात नहीं कर रहा। तो दान से जो संबंध बनता है वो मानवीय होता है, और दान वही दान होता है जब कोई अपनी बहुमूल्य वस्तु या अपनी कीमती चीज दी जाए। और आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी संस्कृति में से इतने सारे दान के उदाहरण आपके सामने रखने की, और भारत से बाहर भी लोग दान को बहुत आवश्यक समझते आए हैं। इस्लाम में ज़कात जो है वो बहुत मायने रखती है, उसके 5 मूल्यों में से एक है। तो दान को जब तक एक प्रैक्टिकल रूप में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज की संस्कृति के सारे जो मूल्य हैं, और ये संस्कृति के मूल्य हैं आधुनिक कंज्यूमरिज्म के। ये आधुनिक कंज्यूमरिज्म भारत में 2 प्रकार से आया है, एक कैपिटलिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत और दूसरा मार्क्सिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत। दोनों में अंतर केवल इतना है कि मार्क्सिस्ट व्यवस्था में स्टेट जो है वो संपत्ति का मालिक होना चाहता है या उसको संपूर्णता नियंत्रित करता है, और कैपिटलिस्ट व्यवस्था में यह है कि धनवान लोग उसके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं, जिसको प्लेटो ने प्लूटोक्रेसी कहा था, और कहा था कि ये डेमोक्रेसी का सर्वनाश कर देगी। तो वास्तव में ये लोभ, ये दान की कमी, ये 5 ऋणों को न समझना, ये ही मूल्य हैं। और जब तक आधुनिक व्यवस्था को आप उन मूल्यों में नहीं लाएंगे, तब तक नए ऐसे मूल्य नहीं बनेंगे जिसमें हमारे जो नौजवान, हमारी जो नव युवतियां हैं, उनका जीवन समृद्ध, सुखी और सहज बन सके। तो इतना ही मुझे आपके सामने कहना था, और मैं चाहूँगा कि आप प्रश्न पूछें। अगर संयोजकों की ओर से प्रश्न की या प्रश्नों की व्यवस्था हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी सर, कई सवाल हैं हमारे बीच में। पहले से बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। मुकेश जी अपना हैंड रेज किए हुए हैं। मुकेश जी, आपका सवाल क्या है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि सर ने बताया कि दान देना चाहिए, तो सर दान किसको देना चाहिए, इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ कि दान हम किस व्यक्ति को दे जो हमारे लिए उचित रहे। हाँ, देखिए क्या है कि एक तो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है जिसमें एक बड़े
मामूली तौर पे लोग समझते हैं कि दान पुण्य का मतलब आप तीर्थ गए हैं, ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य कर दो। लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा इस प्रकार से दान नहीं था। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, दान का मतलब तो ये, जिस आप कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से पढ़कर आए हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, उसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, ये दान है। एक उदाहरण दे दिया, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां कुछ कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि उस शहर में आप 5000 पेड़ लगवा सकें। कोई आंदोलन चल रहा हो तो उसमें शामिल हो जाएं, उसमें अपना धन दें। तो देखिए, दान का अर्थ वो जैसा पे प्रायः समझ लिया गया है, क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि जितनी भी हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं थी और मूल्य थे, उनको सिर्फ धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि भाई ये है, ये धर्म है और ये हिंदू धर्म है, और अब ये बहुत पुराना हो गया है और इसको आप अलग कर दीजिए। तो पहले तो चाचा नेहरू ने इसे अलग किया, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने तो सब कुछ मार्क्सिस्टों के हाथ में सारी शिक्षा को देकर वो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूरी की पूरी शिक्षा को कुत्सित कर दिया। आपको वेद से लेकर श्री अरविंद तक, दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश तक, इन महान ग्रंथों को पढ़ाया ही नहीं गया, इनका जिक्र नहीं हुआ, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो जो मूल्य आपके जहां थे जिन ग्रंथों में, उन ग्रंथों का तो आपने कभी जिक्र नहीं किया, शिक्षा नहीं करी, तो इसलिए आपने ऐसा मान लिया। तो दान तो 85 प्रकार से देना है, और वो देना एक व्यवस्था के द्वारा होगा, केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। आज सरकार बना रही है कि आप कॉलेज में पढ़ेंगे, आप लोन ले लेंगे, फिर लोन उतारेंगे, तो आप तो वही अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना। और भारत तो उसको बड़ा अच्छा फॉलो कर रहा है, लाइसेंस परमिट राज में, कि पुलिस वाला भी बनना है तो एमपी को 2-3 लाख की रिश्वत दे दीजिए और फिर उसके बाद पुलिस वाला बन के उसकी वसूली करते रहिए। तो ये जो सिस्टम आ गया है भारत में, ये तो भारत का सिस्टम नहीं है ना। आपको वो सिस्टम बनाना होगा। ये लाजिम हो कि अगर आप पढ़कर निकलेंगे तो फिर आपको सारी उम्र कुछ ना कुछ उस विश्वविद्यालय को या उनको देना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं बना सकती ये नियम? हाँ, लेकिन इसमें सारी व्यवस्था बदल जाएगी ना, क्योंकि फिर पार्लियामेंट ही सर्वोपरि नहीं होगा। फिर वो करोड़ों लोग जो देते हैं, जो स्कूल को, कॉलेज को, गुरुओं को देते हैं, वो भी बोलने लगेंगे कि भाई चला तो मैं भी रहा हूं ना, विश्वविद्यालय तो मैं भी चला रहा हूं, तो तुम किसको अपॉइंट कर लेते हो, टीचर किसको बना देते हो? इसमें मेरी भी तो कुछ कथनी होनी चाहिए, मेरी भी तो कुछ से होनी चाहिए। तो देखिए, ये व्यवस्था के बदलने से मूल्य नहीं आएंगे, मूल्यों की डिमांड से व्यवस्था बदलेगी। जो पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी है उसको बदलने की आवश्यकता है, उसके अंदर एक बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है। सर जी, मेरा मानना है कि जो हम अपनी कॉलेज को फीस दे रहे हैं सर, वो दान है कि नहीं? बिल्कुल दान नहीं है। कोई भी आपको बताएगा कि जितनी फीस आप देते हैं उसमें कॉलेज में झाड़ू भी नहीं लगती है। अच्छा, कोई भी आपको बता देगा कॉलेज की झाड़ू का खर्चा भी नहीं होता पूरा। वो दान, जो लोग गरीब है वो दान नहीं दे पाएंगे या ज्यादा फीस नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब सब बढ़ना नहीं चाहिए क्या सर? अब ये देखिए, यही तो मुसीबत है बेटा, कि पहली बात तो आपने बहुत से लोगों को सिर्फ गरीब, दीन, मलीन मान लिया कि और किसी लायक वो है ही नहीं, तो वो हमेशा गरीब बने रहेंगे क्या? वो कल को खाएंगे कमाएंगे नहीं। नहीं, सुनिए, नहीं प्लीज सुनिए, बात तो सुनिए। वो पढ़ने के 5 वर्ष 7 वर्ष बाद भी क्या कुछ नहीं कमाएंगे? और अगर कमाएंगे तो उसका कुछ अंश नहीं दे सकते क्या? जी सर, दे सकते। तो फिर कम कमाएंगे कम देंगे, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा देंगे।
अगर कानून ये बनेगा कि 5% देना है आपको, तो आप 5% ही देंगे। बात को समझिए। क्यों? क्योंकि आप उस सोशलिस्ट स्टेट से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो चाचा नेहरू और उन चाचा नेहरू का भूत आज भी भारत पर सवार है। उस सोशलिस्ट लाइसेंस परमिट राज से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। और हर पार्टी यही कहती है कि मैं आपके घर में इतनी गैस लगवा दूंगा, मैं आपके घर में ये कर दूंगा, फ्री आपको दे दूंगा, सारी महिलाएं दिल्ली में फ्री चलेंगी। तो जहां स्टेट सब कुछ आपको फ्री देने के लिए तैयार है और दे रहा है, तो वहां आप परतंत्र बन गए। जब आप पैसा खर्च करेंगे, जब आप दान देंगे, जब आप लगाएंगे, तो लोग आपकी सुनेंगे। आज आपकी कोई नहीं सुनता, आपको ठगा जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ स्टेट को समर्पित कर दिया है कि भाई तुम ही अस्पताल चलाओ, तुम ही कॉलेज चलाओ, तुम ही स्कूल चलाओ, तुम ही विश्वविद्यालय चलाओ, तुम ही न्यायालय चलाओ, सब कुछ तुम करो, और हम तो सिर्फ आर्टिकल लिखेंगे कि कैसे करना है, या आंदोलन कर देंगे हम। कोई आ जाएगा हमारे को बताने के लिए कि कैसे आंदोलन करना है। कभी कोई बुड्ढे बाबा आ जाएंगे महाराष्ट्र से, कभी कोई दूसरे दाढ़ी वाले बाबा आ जाएंगे हरिद्वार से, कभी कोई और आ जाएगा। हम इंतजार में रहेंगे कि कोई आए और आंदोलन चलाए और हम भेड़ की तरह से उस आंदोलन में समर्पित हो जाएं। आप देखिए संस्कृति का मूल्य कहाँ है, कैसा है। वो आपको स्वायत्त नहीं बना रहा, वो आपको परतंत्र बना रहा है। जिस व्यवस्था में है वो परतंत्र व्यवस्था है, और उसके अंदर जितने अधिकार आज शासक वर्ग के हैं, राजनीतिक वर्ग के हैं, उतने इतिहास में कभी नहीं थे। न तो वो वैभव था लोगों के पास। राजाएं, आज जो राजा जितने वैभव में रहते हैं, वो वैभव तो कभी, मैं समझता हूं कि मुगल आजम को भी नहीं था, या उससे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं था। जिस वैभव में आज हमारा राजनीतिक वर्ग रहता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हम राष्ट्रपति हैं, वो केवल एक उन्हीं के लिए हवाई जहाज है। जैसे अमेरिका में A1 होता है, तो इस प्रकार के वैभव तो पहले नहीं थे जैसे आज वैभव हैं, और इतने वैभव नहीं थे। तो आप ये समझिए कि मैं जो बात कह रहा हूं दान की, वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। हाँ, अगला प्रश्न ले। जी सर, एक और ही मेरा क्वेश्चन है, आप किया गया हो तो मैं पूछ सकूं? आपने अभी पूछा है क्या प्रश्न? नहीं, कोई नए। हाँ, आप मनीष जी आप रुक जाइए, नए व्यक्ति को पूछने। देखिए, थैंक यू सर। सूरज कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। सूरज, अपना माइक ऑन कर ले, आप पूछ सकते हैं। सर अनिल पूछेंगे। अनिल ने बोला था कि सर वो सवाल पूछना चाहते हैं। अनिल है, कौशल है, रॉबिन्स है, प्लीज वो पहले पूछ लें। हाँ प्लीज। हाँ, अनिल कुमार जी। यस सर। सर मेरा सवाल है कि आजकल के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी है वो किसी काम को मतलब धीमी गति से करना पसंद करते हैं, वहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको जल्दीबाजी में करना पसंद करते हैं। तो आज के बदलते दौर और तेजी से बदलती दुनिया के दौर में हम लोग इस दोनों की गति को कैसे समन्वित करें? देखिए, ये स्पीड की बात नहीं है। जो व्यवस्था बनती है, कानून बनते हैं, इसमें स्पीड नहीं होती। इसके अंदर अनुभव, अधिकार, बुद्धि, ये सब चीजें होती हैं, और इसकी प्रक्रिया विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है। हाँ, उनमें विशेषज्ञों में आपको नौजवानों को स्थान देना चाहिए, लेकिन ये केवल नौजवान कर लेंगे, केवल बुजुर्ग लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी कार्य करना होता है उसके लिए विशेष लोग ही आते हैं, और अच्छे अनुभवी लोग भी लिए जाते हैं,
और उस काम को करने वाले लोग भी लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो यंग हैं वो हमेशा बहुत सक्षम होंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, कितने नौजवान करेंगे? तो ये सारी चीजें इस प्रकार से देखनी होती हैं। परिवर्तन की ओर देखना है। हाँ, अगला प्रश्न। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो कि परिवर्तन की ओर हम लोगों को देखना चाहिए, और स्वामी विवेकानंद बोले भी थे कि अगर हम लोगों को तो ऐसे लोग मिल जाएं जो कि शरीर से ना उम्र है, तो हम पूरी दुनिया बदल देंगे। तो सर मेरा ये प्रश्न है कि सर आजकल के परिवेश में, जिसपे कि आपने पहले भी प्रकाश डाला था, कहीं ना कहीं जो अध्ययन और अध्यापन है वो इस बात से बहुत असर पड़ रहा है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में कहीं ना कहीं दूरी बन रही है, जिसका कि असर हम लोगों के पढ़ाई पे भी पड़ रहा है सर। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है आज के समय में? इसका क्या उपाय है, और कैसे हम लोग जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षकों से ज्यादा संपर्क? मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, सारी शिक्षा की व्यवस्था को बदलना है। कुछ बातें कह दूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। 21 वर्ष से पहले किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे कि सारे स्कूल कॉलेज अधिकांश रूप से वोट और वोट की राजनीति से मुक्त रहें। ये तो मेरा आंखों देखा हुआ है कि जब से 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने लगा है, तब से विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक राजनीति का प्रचार प्रसार हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस समय नहीं गिना सकता। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में छात्रों का किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। पहली बात, देखिए ऐसा आज से नहीं, हजारों साल से ऐसे ही रहा है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो थे वो जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर चुके तब उन्होंने राजनीति प्रारंभ की। और क्योंकि ये था कि अध्ययन के समय आप अध्ययन कीजिए, राजनीति के बारे में अध्ययन कीजिए। राजनीति क्या होती है, राजनीति के प्रकार क्या होते हैं, कितने तरह के वाद हैं, कितने तरह के मत हैं, उन सब का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। उसके बाद फिर आप व्यवहारिक राजनीति में उतरिए। तो पहले तो ये जो गड्ढमड्ढ हो गया है अधिकार के नाम पर। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षा में सबको दाखिले का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन सबको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो बार बार बिना सक्षमता हासिल किए भी दाखिला ले ले। तो आज ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी में दाखिला लिया और 10 साल पीएचडी में लगाए और 10 साल तक आप कैंपस में रहे। अब प्राचीन भारत में तो पीएचडी आपको 42 वर्ष की आयु में मिलती थी। 42 वर्ष से पहले आप पीएचडी नहीं ले सकते थे। लेकिन वहां प्राचीन भारत में यह था कि उसके बाद आप केवल पढ़ाएंगे, आप राजनीति करने नहीं चले जाएंगे, आप व्यापार करने नहीं चले जाएंगे, उसको ही पीएचडी दी जाती थी। तो हमें आज भी ये सोचना है कि शिक्षा में अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो साधन हैं, उनका सदुपयोग कैसे हो, और वो सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज फ्रीडम, चॉइस, सबके नाम पर इतना वेस्टेज है। देखिए, दाखिला लिया आपने, साइंस पढ़ा, उसके बाद आपने दाखिला इंजीनियरिंग में लिया, इंजीनियर बन गए आप, 5 साल किया, फिर आपने आईएएस का इम्तिहान दिया, आप प्रशासक बन गए या पुलिस में चले गए। तो अब कोई भी कहेगा कि वो 5 साल की इंजीनियरिंग का क्या हुआ भाई, आपने क्या उपयोग किया? अब आपसे झूठ बोलते हैं आज के आईएएस आईपीएस की हमने जो पढ़ा था वो सब काम आता है, लेकिन दुनिया जानती है कि कुछ काम नहीं आता।
तो शिक्षा के अंदर ये सारी चीजें जो बीमारी के रूप में आ गई हैं, इनका हमको इलाज करना है। आप जो पढ़ें उसका सदुपयोग तुरंत हो, उसी समय हो और उसी रास्ते में आपको मिले। फ्रीडम इस बात का नहीं दिया जा सकता कि आप पढ़ें कुछ और उसके बाद आजीविका कुछ करने लगे क्योंकि आप फ्री हैं। ये सवाल केवल आपके फ्रीडम का नहीं है। आपको जिस चीज के लिए समाज ने पैसा दिया है, ट्रेन किया है, आप वो ना करके कुछ और करने लगे और फिर पढ़ने लगे और फिर उसके लिए कुछ और मांगने लगे, तो ये संसाधनों का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है। इस तरह से मैं समझता हूं कि शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और हमारी शिक्षा नीति ही नहीं बन पा रही। और मैं आपको कह देता हूं कि आधुनिक समय में भी जो शिक्षा नीति है, ये भी शायद कोई बहुत कारगर नहीं हो पाएगी। क्षमा करें मुझे निशंक जी और आज के राजनेता, क्योंकि इसका आधार आजीविका है ही नहीं। 12वीं क्लास से बच्चा जो निकलता है 18 साल की उम्र में, उसे यही नहीं पता कि करना क्या है। वो फिर पढ़ेगा 5 साल, उसके बाद फिर चॉइस करेगा, फिर इधर जाएगा उधर जाएगा। तो माँ बाप भी दुखी हैं, वो भी दुखी है। ये इस तरह से शिक्षा नहीं चल सकती। ये सब पिछले 30-40 वर्ष में दुनिया भर में हो गया है। इससे हमें बाहर निकलना है। हाँ, अगला प्रश्न। धन्यवाद सर। और किसी का कोई सवाल है? मुकेश जी का ही सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल होगा ये। हाँ जी, मुकेश जी पूछिए सवाल आपको। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, आपने बताया था कि हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज है, विद्यालय, महाविद्यालय, वो लगभग आज न तो पूर्व की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं और न ही पश्चिम के देशों की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या हमारे को ये नहीं होना चाहिए कि सर हम अपनी खुद की संस्कृति का अनुकरण करें? ये होना ही ये चाहिए, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरी संस्कृति का अनुकरण करके जिंदा नहीं रह सकता। अब जो भारत में समस्याएं हो रही हैं और बढ़ रही हैं, और पिछले 20 वर्ष में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो इसी के कारण हैं। आज जो आप कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग ऑपरेटिव हो गया है या देश को तोड़ने की राजनीति हो गई है, तो वो शिक्षा नीति के कारण ही तो हो गई है। क्योंकि आपने अपने आप से प्यार करना नहीं सिखाया। अपने देश से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने देश को अच्छा, समर्थवान, गौरववान न समझूं। आज जो पढ़ता है और पढ़ाता है, उसको अपनी प्राचीन संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति में कुछ अच्छा लगता ही नहीं। आप उससे पूछिए, What can you be proud of in India? जरा बताइए, और कैसे ये चीजें हुई थी। सिर्फ नाम मत ले लीजिए, आई एम प्राउड ऑफ ताजमहल, आई एम प्राउड ऑफ बृहदीश्वर मंदिर और आई एम प्राउड ऑफ, ये बताइए कि ये सब चीजें कैसे बनती थी, कैसे चलती थी और समाज को क्या नुकसान पहुंचाती थी या क्या फायदा पहुंचाती थी। तो आपको कोई कुछ नहीं बता पाएगा। तो हम नारों के युग में रह रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हमको रोज घुट्टी पिलाई जाती है। लेकिन भारत तो विश्व गुरु क्या, भारत तो स्वयं अपने बारे में नहीं समझ पा रहा कि भारत की विरासत क्या है, क्योंकि वो शिक्षा में कहीं थी नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण आर्टिकल 28 का सेक्शन 1 है। उसमें स्पष्ट लिखा है, देयर विल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी इंस्टीट्यूशन विच इज फंडेड होली और पार्शली बाय गवर्नमेंट फंड्स। अब इसका मतलब क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के नाम पर जितनी भी आपकी संस्कृति के ग्रंथ हैं, वेद से लेकर जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी तरह तरह की विद्याओं के ग्रंथ हैं, वो सब हट गए भाई, क्योंकि वो सब रिलीजियस थे, वो सब हिंदू ग्रंथ थे। तो आपने तो पढ़े नहीं।
और आर्टिकल 30 में जिन्होंने क्या कहते हैं मदरसे खोले, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया कि सारे हिंदू जो हैं वो काफिर हैं, वो जन्नत नहीं नसीब होगी उन्हें, वो दोज़ख में जाएंगे। वो पढ़ाते हैं, आपसे पैसा लेके पढ़ाते हैं, मेरे और आपके टैक्स मनी से वो ग्रांट लेकर पढ़ाते हैं। तो जब आपने ऐसी शिक्षा नीति बनाई है, जब उसके अंदर आपने नफरत और संघर्ष को पिरो दिया है, जब आपने इस्टेब्लिश कर दिया है, तो फिर अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं पैदा हो गया और आज हमें आतंकित कर रहा है, तो इसमें कौन सी अचरज की बात है। हाँ, अगला प्रश्न। धन्यवाद सर, अब सवाल नहीं है। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर निरंजन महतो, हमारे सदस्य कार्यकारिणी परिषद संवर्धन ट्रस्ट, और मैं आमंत्रित